Your best friend is going to be the periodic table in all of AS chemistry. बहुत सारी चीजें मैं आपको याद कैसे कर पाऊंगा? थ्रू द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, आपको अगर अपना पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता होगा, so there is a lot of things that you can just deduce using the periodic table. ठीक है, so this is going to be your best friend. इस टॉपिक में हमें कैसे काम आएगा? By picking out these numbers. ठीक है, which we usually do. अच्छा, moving onwards, I think I have, okay, here we go. Let's hop on to our first bit of formulas. Look at some simplistic calculations. जल्दी से जल्दी सारे formulas revise करते हैं, and then go on to past paper questions. तो does anyone remember, अगर मुझे moles निकालने हो किसी चीज के, तो what is the formula for that? How do I calculate out the moles? Yes, perfect. तो one of the formulas that we've been using, पता नहीं class 9 से class 8 से पता नहीं कब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये. ठीक है, so yes, so mass upon mr/ar. ठीक है, so whether it be simple atoms, for example sodium, तो सोडियम के लिए ar इस्तेमाल होगा, या फिर अगर for example अमोनिया गैस है तो अमोनिया गैस के लिए mr इस्तेमाल होगा. ठीक है, pretty standard, pretty easy stuff, we already know that. अच्छा जी, एंड अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जो है वो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दें, तो हाउ डू यू थिंक यू कैन गिव मी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स? वेल, दैट्स थ्रू बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग द मोल्स into 6.02 into 10 power 23. ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रीटी एलिमेंट्री, ये भी हम सब चीजें हमें पता होती हैं. ठीक है, सो दीज आर टू फॉर्मूलाज, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम. अच्छा, दूसरी बात, आई थिंक हुदा ने पूछा था, हुदा यू नाउ नीड टू पे अटेंशन. सो मैं आपको बोलता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 35.5 ग्राम्स ऑफ Cl2. अच्छा, सो मैंने आपको इतने ग्राम्स ऑफ Cl2 दे दिए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दें आप मुझे. तो इसकी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले आप इसके मोल निकालोगे, राइट, एंड देन यू मल्टीप्लाई द मोल्स बाय दिस many amount of particles to find out how many particles of Cl2 I have. ठीक है, so let's see. अच्छा, 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 है. so moles कैसे निकलेंगे? थ्रू मास अपॉन mr/ar, राइट? so mass upon mr/ar. What is the mass I have? 35.5 and mr. Okay. Now, how are you going to identify? मुझे mr इस्तेमाल करना है, मुझे ar इस्तेमाल करना है. ये देखो, ये क्या है? Is this an atom? No, this is not an atom. This is a molecule. Cl2 का molecule है. ठीक है जी, तो मैं mr लूंगा, मैं molecular mass लूंगा of this molecule. अच्छा, ये कैसे मिलेगा? Cl को हम देखते हैं. Cl is 35.5, right? Cl is 35.5. मसला क्या है? मेरे पास एक मॉलिक्यूल में 2 Cl है, so I'll have to multiply this by 2 या add it twice. So basically it's 35.5 upon 70, right? So मैंने Ar नहीं लिया क्लोरीन का. Why? Because this is the thing that's my concern, that's Cl2. तो मैंने Mr लिया of chlorine, and over here I'll get 0.5 moles of your Cl2 gas. and मैं आपको बोलूं कि अब मुझे number of particles निकाल दो, तो it will be 0.5 into 6.02 into 10 to the power 23. so you should approximately or maybe equivalently even get 3.01 into 10 to the power 23. ठीक है हुदा, क्लियर? और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? anyone has any issues with this calculation? oh sorry, मुझसे गलती हो गई. this is not going to be 70, this is going to be 71. silly mistake. Yes, exactly. 71 आ रहा है, not 70. ठीक है, 35.5 plus 35.5 is 71. किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज? Marij is having connectivity issues. Okay, no problems. So I want you guys to try out this. Let's see किसको कितना समझ में आया. 336 grams of iron. ठीक है, 336 नोट डाउन कर लो. मैं पीरियोडिक टेबल पे जा रहा हूँ, so that you can see कि हमें mr या ar जो भी whatever जो भी इस्तेमाल करना है वो क्या इस्तेमाल करना है. ठीक है, 336. Let's see. So iron is over here, ferrum. ठीक है, and you have to work out 336 grams of ferrum में कितने amount of particles हैं. ठीक है, let's see कौन पहले बताता है. has given us the answer, and 3.6 into 10 to the power 24. okay, so कैसे किया अनम ने? अनम ने देखा, अच्छा भाई देखो आयरन है, आयरन कैसे एग्जिस्ट करता है?
इट्स अ मेटल, ठीक है। तो आयरन विल एग्जिस्ट मोनोएटॉमिक, सिर्फ एक ही Fe एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब एक पार्टिकल एक Fe ही होगा। सो आई हैव टू जस्ट यूज अप दिस, ठीक है, आई जस्ट यूज 55.8, सो दैट्स गोइंग टू बी 3। अच्छा, मोल्स के लिए यूज द सिंबल n, ठीक है, तो मैं भी अब n ही लिखना शुरू करूंगा, मोल्स पूरा पूरा लिखना बहुत देर लगा देगा। 336 डिवाइडेड बाय व्हाट डू यू हैव, 55.8, and then we are getting 6.022 moles. And then for the number of particles, all you have to do is you have to do 6.022 into 6.02 into 10 to the power 23. So we are getting, according to Anam, 3.6 into 10 to the power 24. ठीक है, I hope no one has issues in this either. ठीक है, अच्छा, now let's look at some spin-off versions of these questions. What mass of aluminium contains 2 into 10 to the power 23 atoms? है वही सवाल, इंस्टेड ऑफ द मास दिस टाइम आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, तो आप अब बैक ट्रैक वर्किंग करोगे। आप पहले इस एटम से क्या निकालोगे, मेरे पास मोल्स कितने हैं, फिर मोल से क्या निकालोगे, मास कितना चाहिए होगा, राइट, इजी पीजी। सो लेट्स डू दैट, 2 into 10 to the power 23 एटम्स। एल्यूमिनियम एग्जिस्ट कैसे करता है, एल्यूमिनियम एग्जिस्ट भी एज एल एटम्स ही करता है, राइट, एल्यूमिनियम एटम्स ही करता है। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि मेरे पास मोल्स कितने हैं, तो ये देखोगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को होता है केमिस्ट्री पढ़ते हुए अलजेब्रा भूल जाते हैं, राइट, यू डोंट हैव टू मेमोराइज 10,000 फॉर्मूलाज। आपको पता है मुझे मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इस चीज से डिवाइड कर दूंगा, राइट, दैट यू डू सिंपल अलजेब्रा। फिजिक्स करते हुए एवरीवन इज ओके, बट केमिस्ट्री आते हुए पता नहीं एवरीवन इज लर्निंग टू मेनी फॉर्मूलाज। तो ऑल यू हैव टू डू इज 6.02 into 10 power 23, इसको हम डिवाइड कर देंगे, right? So that is going to be 2 into 10 to the power 23 divided by 6.02 into 10 to the power 23. This answer is coming out to be 0.3322 moles, ठीक है। And then you want to work out the mass, तो once again just look at your algebra, कैसे होगा, mass क्या हो जाता है, mole into MRAR, right? You just have to multiply mole by the MRAR. So the mass is going to be 0.3322 and the MR of aluminium exists as a monoatomic, तो हम इसको 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कैन एनीवन गिव मी द आंसर, और मुझे ये सब बताओ, सबको समझ में आ रही है? होदा आपकी जो कंफ्यूजन थी कि MR कब इस्तेमाल करना है, AR कब इस्तेमाल करना है, वो क्लियर हुआ? The answer should be 8.97, ठीक है, no exponents, हाँ, ठीक है। सो दिस इज दैट एंड यू कैन कोड दिस एज 9 grams। अच्छा, राउंडिंग ऑफ एंड एवरीथिंग वो भी मैं सिखाऊंगा, बट हम थोड़ा सा ये सब चीज देख लें एंड देन वील गेट इनटू दिस। अच्छा, वन मोर थिंग, ठीक है, फिजिक्स पढ़ते हुए हमारा मास में क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, राइट, हम उसको केजी रखते हैं। केमिस्ट्री में आप जब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हो, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन MR, ये ध्यान में रहे ये ग्राम्स में है, ठीक है जी। दिस फॉर्मूला विल ओनली वर्क इन ग्राम्स। अगर आप इसमें केजी डालोगे तो आपकी सारी कैलकुलेशंस गलत होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कभी कभार एग्जामिनर आपको डेटा वैल्यूज किस में दे देगा, केजी में दे देगा, और गलती से, क्योंकि फिजिक्स से आदत बनी है केजी में ही डालते हैं हम हर चीज, तो वो चीज ओवरलुक हो सकती है, वो डाला आंसर ही नहीं आ रहा, बैठ गए सर पकड़ के, भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला यूजेस मोल्स। फिजिक्स में भी काम आएगा, जब आइडियल गैसेस वगैरह पढ़ोगे A2 में, तो उस फॉर्मूला में भी ग्राम्स में जाएगा इसमें मास, इसमें कभी भी केजी में मास नहीं जाता है, ठीक है। सो hopefully that is clear, ठीक है। कैन एनीवन वर्क आउट द आंसर फॉर बी अपार्ट फ्रॉम अनम, ठीक है, अनम के अलावा देखते हैं who can work out the answer. I'm hoping for more questions. अच्छा, दूसरी बात है, जो सॉल्व कर ले वो मुझे डायरेक्ट में मैसेज किया करे, so that we can see कि सब क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, right? So 6 into 10 to the power 20 atoms of aluminium का कितना मास होगा, ठीक है। Let's see who can calculate that out. By the way, किसी को अगर AR चाहिए तो AR of aluminium is 27, ठीक है, we just use that, 27 is the AR. So कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ कितना हो जाएगा ये। अच्छा, so the correct answer to this is this, ठीक है, 0.0269. Now there were many answers जिसमें एक्सपोनेंट्स गलत सूरत आ रही, ठीक है। ओके, कैसे करना है इसको, 6 into 10 to the power 20, ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर में फ्रैक्शन वाला बटन दबाएं,
ठीक है, या फिर अगर आप डिवीजन का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा आप 6 इंटू 10⁻20 जब लिख रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में इस तरह से आता है, राइट? आप एक्सपोनेंट वाला साइन दबा दो तो वो इंटू 10 करके और उसके आगे आ रहा होता है, तो आप 20 उसके आगे लिखोगे। मेक श्योर यू पुट दिस थिंग इन ब्रैकेट्स, ठीक है? जब भी कोई चीज लिख रहे हो एक्सपोनेंट के साथ उसको ब्रैकेट्स में डालो जरूर। व्हाई इज दैट? क्योंकि अगर आपने इसी के साथ आगे क्या लिख दिया, 6.02 लिख दिया, तो कैलकुलेटर क्या करेगा, पहले वो 20 को इससे डिवाइड कर देगा एंड देन इट विल एक्सपोनेट इट, ठीक है? तो वो आपको नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली जो टर्म जहां पे वैल्यूड होनी है वहां पे करनी, ठीक है? सो मेक श्योर जो भी एक्सपोनेंट वाली टर्म्स हो आप उसको क्या करें, ब्रैकेट्स में लिखे, अलग अलग लिखे, सो दैट द एक्सपोनेंट्स डोंट इंटरफेयर विद दैट, ठीक है? एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था कि आप कैलकुलेटर में ऐसे ही डालते, फ्रैक्शन वाला बटन दबा के ऊपर की जगह ये डालते, नीचे की जगह ये डालते, राइट? देन यू वुड हैव गॉटन दिस एज योर आंसर। ऐसा ही है। अच्छा, अब एक अप्रोच क्या है, जब ये आंसर आ गया तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई बटन दबाओगे, 27 दबाओगे तो आंसर के आगे मल्टीप्लाई बाय 27 कर दोगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है? एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आपने ये वैल्यू लिख ली, देन यू पंच दिस इन द कैलकुलेटर अगेन। मेक श्योर करो वंस अगेन, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू अगर कैलकुलेटर में डाल रहे हो, पुट ब्रैकेट्स अराउंड इट। जो भी एक्सपोनेंट वाली टर्म है वो गड़बड़ करती है, तो मेक श्योर यू पुट ब्रैकेट्स अराउंड योर एक्सपोनेंट वाली टर्म। अपनी आदत बनाओ, अभी से आदत बनाओगे ताकि इवेंचुअली बाद में जाके आपके साथ मिस्टेक्स ना हो रही हो। तो ट्राई टू पुट ब्रैकेट्स, ट्राई टू क्या लाजमन पुट ब्रैकेट्स अराउंड एनी ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म्स, ताकि वो किसी और चीज से पहले इवेल्युएट ना हो जाए, ठीक है? डिड आई एड्रेस एरर्स? किसी का अगर एरर एड्रेस नहीं हुआ है, किसी और वजह से हो रहा है, तो मुझे बताओ, सो दैट आई डू नो, सो दैट वी लुक आउट फॉर दैट, ठीक है? और दूसरी बात ये, किसी को इस सवाल में कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में अगर नहीं आई हो, ये हो गया, हमने क्या चीज रिवाइज कर ली, मास अपॉन एम आर, ठीक है? प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रीटी इजी पीजी, हमने रिवाइज कर लिया, हमें ये सब चीजें रिकॉल हो गई। लेट्स लुक एट सम पास्ट क्वेश्चंस, ठीक है? एंड विल कम बैक टू दिस थिंग थोड़ा देर में, ओके? बल्कि नहीं, आई हैव टू गो ओवर एवरीथिंग, मुझे कंसंट्रेशन वगैरह भी समझानी। चलो हम इसी को गो थ्रू करते हैं आगे से। अच्छा, कुछ और चीजें मुझे डिस्कस करनी है, लेट्स डू दैट थोड़ा सा और आगे जाके। अच्छा, 1 मोल ऑफ गैस, हमने क्या देख लिया, मोल वगैरह के सारे फॉर्मूलाज देख लिए, अब आ जाते हैं गैसेस से, और गैसेस की फिर स्टोइकियोमेट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है, विल हैव टू लुक इनटू दैट एज वेल। अच्छा, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज कितना, इट ऑक्यूपाइज 24 डीएम क्यूब या फिर 24,000 सीएम क्यूब, ठीक है जी? अगर आप डीएम क्यूब में लिखेंगे तो 24 डीएम क्यूब है, अगर आप सीएम क्यूब में लिखेंगे तो 24,000 सीएम क्यूब है, ठीक है? सो 1 mole of gas will occupy this much volume at RTP. Yes, this is a constant value when this is a constant value for RTP. जब तक आप रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हो, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, 1 atmospheres of pressure, you're going to use this, ठीक है? If these are not the conditions, then there is another way, जो हम बाद में जाके आइडियल गैसेस में जाके देखेंगे कि वो फिर तरीका क्या है टू वर्क आउट द वॉल्यूम या प्रेशर या टेम्परेचर व्हाटएवर एट दैट थिंग, ठीक है? तो अगर इट्स नॉट आरटीपी, then we're going to look at what is happening with them in ideal gases वाला चैप्टर, ठीक है? तो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 24 डीएम क्यूब, 24,000 सीएम क्यूब। तो अगर मैं आपको फॉर्मूला देना चाहूं कि भाई आपकी गैस कितना वॉल्यूम जो है वो क्या कहते हैं ऑक्यूपाई कर रही है, सो यू कैन गिव इट थ्रू मोल्स इनटू आइदर 24 डीएम क्यूब और 24,000 सीएम क्यूब, राइट? प्रीटी इजी पीजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर मैं आपको बोल दूं यार देखो, मैं मेरी जो गैस है वो वॉल्यूम ले रही है 640 सीएम क्यूब का, मुझे मोल्स बता दो आरटीपी पे, तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 24,000 सीएम क्यूब, ठीक है? अगर डीएम क्यूब में देता, 64 डीएम क्यूब देता, तो डिवाइड बाय 24 डीएम क्यूब कर दोगे टू गेट आउट द मोल्स, ठीक है? सिंपल अलजेब्रा जो हमें आता है। सो लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस फॉर दिस एज वेल। Calculate the volume occupied by 0.40 mole of NO2 at RTP. तो can you give me the value for this? क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 0.40 mole of NO2 at RTP. If I want to work out the volume, so it's as simple as volume will equals to whatever moles you have of the gas. RTP पे है तो all you have to do is multiply by 24, डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? अनम ने हमें दे दिया है कि सर आंसर जो है वो 9.6 डीएम क्यूब आ रहा है, ठीक है? अच्छा,
ये आगे अगर आप सीएम क्यूब में करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली एग्जामिनर जब हम पासवर्ड देते हैं तो वो लिखता है कि भाई मुझे किस चीज में चाहिए, तो फिर हम उसको देख रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल। तो ये कैसे करेंगे, पहले 500 सेंटीमीटर क्यूब में हम मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स कितने हैं, एंड देन मोल्स को मास में कन्वर्ट हमें करना आता है कैसे, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन MR, राइट। सो लेट्स डू दैट। सो वी हैव गॉट 500 सेंटीमीटर क्यूब, सो मोल्स कितने हो जाएंगे, 500 ओवर 24,000, राइट। और मैं आपको बोलूं यार अब मुझे मास निकाल दो, तो मास कैसे निकलेगा, मास होता है मोल इंटू MR, बिकॉज मोल इज मास अपॉन MR, तो MR ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा सिर्फ। तो मोल क्या आ गए, दिस थिंग दैट वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 500 ओवर 24,000 एंड देन इनटू द MRAR कैसे निकला, Ca2 है, सॉरी CO2 है 12 and 2 of oxygen, तो 2 into 16 is 32, 32 plus 12 is 44. So the MR of this thing is, let's write this down, 12 plus 2 into 16. ठीक है, so can you give me the answer for this? क्या आंसर आ रहा है? ये चलो, let me write this down because ये थोड़े से simple questions हैं, so let's not take too much time over here. So 0.91667, yeah 67 is okay. ठीक है, सो हमें क्या निकालना था, मास निकालना था, और हमने मास निकाला है। वंस अगेन मेक श्योर केजी में नहीं आएगा, ये ग्राम्स में आएगा। अच्छा, कोई इशू अब, ओके, सो होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। कैन यू डू दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर मी? ठीक है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करें, और जो जो कैलकुलेट करता जाए मुझे डायरेक्ट में दे, एंड होपफुली दिस टाइम देयर इज नो एरर्स इन द एक्सपोनेंट्स। ठीक है जी, तो मेक श्योर करना कि आंसर सही है। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं करो, आराम से थोड़ा टाइम लेके कर सकते हो। And by the way, you'll be needing this. So let me just put this down. MR of CO2 equals to 44. Okay. So use that in your calculations as needed. Okay. So the answer is this. Okay. If you did the calculation like this, so you are correct. Moles कैसे निकलने थे? मैं 32 को, yeah, moles कैसे निकलने थे? Mass upon the MR. So mass was this divided by the MR. I find out the moles. मोल्स आ गए, मुझे पता है एक मोल कितना ऑक्यूपाई करता है 24 DM क्यूब। आप चाहे 24 DM क्यूब से करते या 24,000 CM क्यूब से करते, ठीक है जी। वट एवर आंसर यू वुड हैव गॉटन, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तो उस ऊपर वाले से भी ज्यादा आसान था। किसी को कोई प्रॉब्लम्स अभी तक? ओके, लेट्स गो ऑन। वो मुझे 5 पेपर लाजमी आज कुछ एक दो करवाने हैं, बिकॉज आई नो थोड़ा सा जो है वो वरना ही हो जाएगा कि सर आज तो आपने सारा वो लेवल वाला दिखा दिया। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू लुक एट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होती है इजीएस्ट फॉर्मूला मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। दैट्स एज सिंपल एज दैट, और हमने कुछ भी नहीं करना है। दूसरी बात ये ध्यान में रखिए कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो वाली कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं विच विल बी गिवन इन मोल पर DM क्यूब। ठीक है जी, विच इज नॉर्मली हाउ यू गिव योर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन पास्ट पेपर्स में और भी तरीकों से कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा सकती है, देखिए जैसे ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे भी पूछी जा सकती है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे, उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली आपको हमेशा मोल कॉन्सेंट्रेशन ऐसी दी जाएंगी, तो आपने क्या करना है, आपने यूनिट यही यूनिट में ही है सब, मोल डिवाइडेड बाय DM क्यूब। सो इट्स मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन DM क्यूब, स्पेसिफिकली फॉर दिस वन। अगर ग्राम होता तो फिर हम क्या करते, ग्राम डिवाइड बाय DM क्यूब होते। अगर सेंटीमीटर क्यूब तो ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब, अगर मोल परसेंट तो मोल डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब, राइट। दैट इज एविडेंट फ्रॉम व्हाटएवर दीस यूनिट्स आर ओवर हियर। ठीक है, let's look at some once again very boring questions. What is the concentration of CH3COOH solution containing 12 gram of CH3COOH in 250 cent cube of solution? जब भी आपको ऐसी पूछी जाए concentration, तो वो आपको ऐसे ही इसी तरीके से पूछे, ठीक है जी। So don't give it in gram per decimeter cube, उधर लिखा हुआ भी होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, so just calculate as that. तो 12 ग्राम्स है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, राइट। फर्स्ट आई हैव टू वर्क आउट द मोल्स एंड देन आई विल वर्क आउट द कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा जी, मोल्स कैसे निकाल देते, इफ वी रिकॉल मोल्स वर थ्रू मास अपॉन MR/AR। ठीक है जी, तो मास क्या है हमारा, दैट्स 12 ग्राम्स, लेट्स पुट दैट इन। अच्छा जी, अब आ जाओ
on the MR. Let's go to the periodic table. There is 2 carbons, 2 oxygens, 4 hydrogens, right? तो 2 carbon है. Let's go to carbon. Carbon was 12, so let's write that down. So it's 2 into 12 plus 2 oxygens. So oxygen is 16. ठीक है, periodic table में 16 होता है. Over here make sure करना नीचे वाला नंबर उठाओ, ऊपर वाला नंबर उठा लेना. एंड दूसरा क्या है, हाइड्रोजन्स. हाइड्रोजन्स हैव ए मास ऑफ जस्ट 1. ठीक है जी. कुछ ये होगा कि ऑब्वियसली जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ एआरस आपको वैसे ही नेचुरली रट जाएंगे. ठीक है जी, विच यू विल बी सीइंग इन दिस कोर्स. मैं फिर बार बार पीरियोडिक टेबल कभी कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें कुछ याद होता है. कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1. दिस इज गुड टू हैव ऑन योर फिंगर टिप्स. ये वैसे ही हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते. ठीक है. सो कैन एनीवन गिव मी द आंसर टू दिस कि सर हमारे मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.2. ठीक है, वेरी गुड. मेक श्योर यूर पंचिंग थिंग्स इन योर कैलकुलेटर. प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये. ठीक है जी. एग्जाम में कैलकुलेटर में पंच करने में सबसे मुश्किल होती है. ठीक है. सो मेक श्योर यू आर वेरी फ्लुएंट विद योर कैलकुलेटर. तो हमारे पास इतने मोल्स आ गए हैं. हमें क्या करना है, अब हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी है. ठीक है जी. सो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलती है, मोल डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम. ओके जी. मोल्स तो आपके पास आ गए 0.2. वॉल्यूम अनफॉर्चुनेटली आपको किस चीज में दिया हुआ है, 250 सीएम क्यूब में दिया हुआ है. राइट, हमें डीएम क्यूब में करना है. तो सीएम क्यूब टू डीएम क्यूब करने का तरीका क्या होता है, सीएम क्यूब टू डीएम क्यूब करने का तरीका ये होता है कि आप 250 को इंटू 10 टू द पावर -3 कर लो. In other words, what are you doing? You're dividing it by 1000. ठीक है जी. I would recommend ऐसे नहीं करो. क्यों? आपकी हैबिट होनी चाहिए, यू शुड नाउ बी डीलिंग इन एक्सपोनेंट्स. ठीक है. सो जब भी सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में करना है तो 250 इंटू 10 पावर वॉट एवर द थिंग इंटू 10 पावर -3. और अगर सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में करना है तो इंटू 1000 या इंटू 10 पावर 3. ठीक है. सो दिस इज द वे दैट विल बी डूइंग. ठीक है. एंड लेट मी ऑल्सो मेक अ नोट फॉर यू गाइज ओवर हियर के सीएम क्यूब into 10 to the power -3 equals to dm cube. ठीक. Also, what's the answer over here? 0.8. Perfect. So 0.8 mole per dm cube. अच्छा. Calculate the mass of anhydrous copper 2 sulfate in 55 centimeter cube of 0.20 mole per dm cube solution of copper 2 sulfate. तो हमें क्या निकालना है, अब हमें मास निकालना है. ठीक है. I have got this much volume, this much concentration. मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, मैं इससे copper 2 sulfate के moles निकाल सकता हूं. राइट. एंड देन फ्रॉम देयर आई कैन वर्क आउट द मास. मुझे वो करना आता है. राइट. सो मोल्स कैसे निकलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. ऐसा ही था. सो अगर मुझे इस फॉर्मूला से मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से. सो हाउ डू वी डू दैट, द मोल्स विल बी, कॉन्सेंट्रेशन क्या थी 0.20 and then what is the volume, that is 55 centimeter cube. इसको लाजिमन आप कन्वर्ट कर लीजिएगा. You would not be using CM cube normally, आप DM cube में करेंगे. The reason for that, mole per DM cube method. ठीक है. तो DM cube cancel out करना है आपने. So you'll have to convert this into DM cube. तो 55 into 10 power -3 आपने इसको कर दिया. The answer over here is working out to be a 0.011 moles. ठीक. तो ये हमारे पास आ रहा है हमारे मोल्स. लेट्स नाउ वर्क आउट दी मास. मास कैसे निकलेगा, वंस अगेन मोल्स क्या थे, मास ओवर mr/ar. राइट. सो द मास इज गोइंग टू बी सिंपली moles into mr/ar. राइट. मोल्स कितने आए, 0.011. MrAr पे चलते हैं. MrAr हमें कहीं फॉर्मूला दिया हुआ है नहीं, तो कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मूला देखते हैं. हाउ डू वी वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर द कॉपर 2 सल्फेट. ऑब्वियसली हमें रिडॉक्स वगैरह में देखने हैं कि हम फॉर्मुलेस कैसे वर्कआउट करते हैं, लेकिन अभी लेट्स गो ओवर दिस क्योंकि ओ लेवल इसका कॉन्सेप्ट है. लेट्स सी कि हम इसको कैसे करते हैं. एनी आइडियाज, कोई गेस कर सकता है कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे तो आना चाहिए बट लेट्स सी. देयर विल बी प्रॉब्लम्स, आई डू अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल बी मेक विलिंग टू जो है क्लियरिफाई दोस. तो कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मूला किसी को आता है? यस, वेरी गुड. अच्छा जी.
कॉपर 2 सल्फेट है, ठीक है जी। दिस इज समथिंग दैट इज यूज्ड वेरी वेरी कॉमनली, आपको इसका वैसे भी फॉर्मूला पता होना चाहिए है। दिस इज CuSO4। बट अगर खुदा ना खास्ता आप इसका फॉर्मूला भूल गए हो तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। कॉपर 2 का क्या मतलब है, दैट कॉपर इज इट्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ वाली, सो देयरफॉर कॉपर इज बेसिकली इन 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट। और सल्फेट एक ऐसा आयन है जो हमें वैसे ही याद होना चाहिए। देयर आर सम आयंस, देयर आर सम पॉलीटॉमिक आयंस जो हमें याद होने चाहिए वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट CO3 2-, नाइट्रेट NO3-, सल्फेट SO3 SO4 2-, राइट। सो सल्फेट इज वन ऑफ दोज। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें ये चीजें भी याद होती जाएंगी, तो अगर किसी को भी याद है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सो लेकिन सल्फेट, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसका ध्यान दिमाग में रख ले, सल्फेट इज SO4 2-। अच्छा 2+2-, right, you can cancel these out because दोनों 2 है, so we're just going to cancel these out and what you see is the formula is CuSO4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। लेट्स वर्क आउट दी MR of this now. कपरम, कपरम हमें कहां पे मिलेगा, in the transition metal row that is 63.5, so the thing is 63.5। then सल्फेट, सल्फेट के लिए S है पहले, S is over here 32.1, ठीक है जी। 1S है, so let's add that down, that's 32.1 plus oxygen 4 into oxygen was 16, ठीक है। अच्छा इसमें भी मेक श्योर यू पुट इन दीज ब्रैकेट्स। व्हाई इज दैट, बिकॉज आपने डेमास फॉलो करना है। कैलकुलेटर में अगर आपने ऐसे कर दिया 0.011 इंटू 63.5 प्लस आपने ब्रैकेट्स नहीं डाले तो कैलकुलेटर क्या करेगा, पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा फिर सब कुछ ऐड अप करेगा, वंस अगेन गोइंग टू गेट द रॉन्ग आंसर। तो जब भी आपको ऑपरेशंस अलग करने हो, मेरी यही प्रैक्टिस होगी कि मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में ही करके चीजें दूं कि भाई इसी तरह डालना कैलकुलेटर में। सो इनपुट इट इनटू योर कैलकुलेटर लाइक दिस। पहले हमें एडिशन करवानी है, पहले MR AR आ जाए, वॉट एवर दी MR वॉट एवर दी AR इज वो आ जाए, एंड देन दैट इनटू 0.011, ठीक है। एंड गिव मी दी आंसर कि वो क्या आ रहा है। So you all are correct, 1.76। I'm going to say कि भाई सबने सही आंसर दिया एंड मेरे को जो इंटरेस्ट आउट ऑफ 1.8 ग्राम्स, ठीक है। राउंडिंग ऑफ मैं अभी थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ, इनफैक्ट अभी ही चल रहे 5